Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful time. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। Lord, we commit ourselves. We are going to meditate your word. Help us to understand. प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी समझ को खोले। Lord, I pray all the students, those who are listening this word, let them deliver in your name. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आपके वचन को सुनते हैं। प्रभु, होने दे प्रभु वो वचन उनके हृदयों में ठहरे। Lord, you bless this evangelism school in Uttarakhand. In Jesus' name we pray. प्रभु, आप इस उत्तराखंड के इवेंजलिस्ट इस स्कूल को प्रभु आप आशीषित करें और यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you. So I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. I'm very happy to meet all of you. मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं जीवित और जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप सबसे मिलकर मैं आनंदित हूं। I thank to our missionary Chung Moon Sik from South Korea. He is taking more effort to make this evangelism school in Uttarakhand. मैं कोरिया के पासवान चंगमुन सी का भी धन्यवाद करता हूं। वो सचमुच में बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस स्कूल को चलाने के लिए। And I thank to Pastor Vinod Tyagi and all the team members and all the students. मैं पास्टर विनोद त्यागी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ ही साथ मैं जितने भी स्टूडेंट्स इस स्कूल के साथ जुड़े हैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। So this is very important time to meditate the God's word. Today topic is the way of salvation. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जबकि हम प्रभु के चरणों में हैं, और आज का जो हमारा विषय है वो है उद्धार का मार्ग। So today is very important. So carefully we have to listen and take notes. I will show you in PDF in PowerPoint presentation so that you can take notes. ओके, आपसे निवेदन है कि आप सभी ध्यान से सुने और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाएं। मैं आपको जो है पीपीटी के रूप में वो दिखाऊंगा, उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। So first of all, we like to read John chapter 14:6. John chapter 14 verse 6. आइए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद। Anyone can read? और हम पढ़ देंगे 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Yeah, thank you. It says Jesus is the way and truth and the life. ये कहता है कि यीशु जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन है। In this world there is a lot of ways, but it leads to destruction. But only Jesus can save us and take to eternal life. और इस वर्ष में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि यीशु ही है जो अनंत जीवन का रास्ता है। So today we are living this life is to understand Jesus and his salvation. और आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें जरूरी है यीशु को जानना और उद्धार को जानना। Today many people go to church and pray and they are become Christian, but still they have a lot of problem in their life. बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। And also the problem in the family and personal life still having, and it gives more and deep stress and mental problem and lot of problems in our life. और उनके परिवार में समस्याएं हैं, वो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं, और जिनकी वजह से वो बहुत ही तनावपूर्ण जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। Many people looks outside, they are very good and good people and they are good Christian, but inside they are still struggling with a lot of spiritual problems. कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत ही ठीक दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत ही परेशान रहते हैं।
So today we are going to see why we are suffering, why we are struggling, why we are having a lot of problem in our life. आज हम यही बात देखने जा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं, हम पीड़ित क्यों हैं, हम तनाव में क्यों हैं। How many people want to deliver from all the spiritual problem? Can you raise your hand? कितने ऐसे लोग हैं जो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? आप हाथ उठाकर दर्शा सकते हैं। How many people have problem in your life? How many people have problem? कितने के जीवन में समस्याएं हैं? Yeah, everybody have problem. Everybody, they know very well because they won't tell to other people, but still they have problem. They are struggling. So today I'm going to show the way how to deliver and how to come out from this kind of spiritual problem. और सचमुच में ये बिल्कुल सत्य बात है कि सभी के साथ में समस्याएं हैं और आज हम इसी पर विचार करेंगे कि कैसे हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं। So this message is very important today for your personal life and family life and also in the social life. इसलिए ये संदेश जो है ये आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए और आपके सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। So do not take it this is only study purpose. This is not only for study purpose, but it is a life purpose. और आप इसे सिर्फ एक अध्ययन के रूप में ना लें कि ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, बल्कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। So if you listen and accept and believe and experience in your life, you can deliver from all the spiritual problems. और यदि आप इस चीज को अनुभव करेंगे और सीखेंगे तो आप सचमुच में इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। So first I am going to share in PDF file, so you can take notes of it. और सबसे पहले मैं आपको एक PDF फाइल दिखा रहा हूं, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। So today we are going to see the message, the way of salvation. और आज का जो हमारा मैसेज है वो है वे ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का मार्ग। First we can see that God created man. और पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी की सृष्टि की। You can see in Genesis chapter 1:27 and 28. और इसे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में और उसका पहला अध्याय उसका 27 और 28 में। Yeah, please read Genesis chapter 1:27 and 28. इसका 1 का 27 और 28 हम पढ़ देंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने के स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Amen. Yes, amen. So Genesis chapter 1:27 and 28 says that God created man. और ये कहता है कि परमेश्वर ने in his own image and likeness. और ये बताता है हमें कि परमेश्वर ने आदमी की सृष्टि की अपने स्वरूप और अपनी समानता में। So if you take God, what is God's character? How यदि हम God गॉड को we देखें, feel? What is God's image? Do you know what is God's image? क्या आपको पता है कि परमेश्वर कैसा दिखता है या परमेश्वर किसकी समान दिखता है? Because Genesis 1:27-28 says, God created man in his own image. So what is God's image? क्योंकि ये उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी की रचना अपने स्वरूप और अपनी समानता में की। तो क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर किसके जैसा है? So to understand man's image, we have to understand God's image. और यदि हमें आदमी को समझना है तो उसको समझने के लिए हमें परमेश्वर को समझना जरूरी है। John chapter 4:24 says, God is spirit. और यूहन्ना 4 उसका 24 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। So God is love and God is eternal, God is holy. There is a lot of character about God. और परमेश्वर जो है वो प्रेम है और परमेश्वर जो है जीवन है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको बाइबल के अंदर हम देखते हैं।
So we have to understand God's image. God is spirit. So those who worship God must worship in spirit. और जैसा लिखा हुआ है कि जो आराधना करे वो आत्मा और आत्मा से आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। But God created man with his spirit plus body, body plus spirit. लेकिन परमेश्वर ने जो आदमी को बनाया वो आत्मा के साथ में शरीर को जोड़ करके बनाया। So we are created by God. Some people say man come from the monkey, but it is not true. But God only created man. परमेश्वर ने आदमी को बनाया। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आदमी बंदर से आया, लेकिन वो सही नहीं है। परमेश्वर ने हमारी रचना करी है। So we must understand we are the creature of God. और ये बात हमको समझना है कि हमको परमेश्वर ने बनाया है, हम उसकी रचना है। So this is the first step. We have to believe we are created by God with his own image and likeness. और ये पहला कदम है जिस पर हमें विश्वास करना है कि हमको परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। So God breathed his spirit to man, so man become life. और परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें आत्मा के साथ में शरीर दिया है ताकि हम जीवित हो जाएं। So man was very happy with being with God, and God also very happy and had fellowship with God, with man. और आदमी जो था वो परमेश्वर की संगति में रह करके खुश था और परमेश्वर भी आदमी के साथ रह करके खुश था। So after that we have to understand what is God's creation principle. और इसके बाद हमें देखना है कि परमेश्वर की जो रचना का सिद्धांत था वो क्या था। So God's creation principle we have to understand. What is our real relationship with God? What is our relationship with God? When God created man, our relationship is very important with God. और इसके सिद्धांत, रचना के सिद्धांत को समझने के लिए हमको जरूरी है उस समय देखना कि आदमी का जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ में कैसा था। So I am going to explain the creation principle now. और मैं अभी जो है रचना का सिद्धांत जो है आपके सामने बताने जा रहा हूँ। I think you don't have TV, no? How can you see this screen? Can you see the screen? Yes. By mobile or computer? By laptop. Laptop. Okay, fine. So the creation principle is God is the creator. और रचना का सृष्टि का सिद्धांत ये है कि परमेश्वर जो है वो बनाने वाला है। And God is the ruler. और परमेश्वर जो है वो शासक है। And God is the master. और परमेश्वर जो है वो मालिक है। So God created man under his control. और परमेश्वर ने जो आदमी को बनाया था वो अपने नियंत्रण में बनाया था। So what is man and having relationship with God is man is creature, not creator. और ये जो सिद्धांत है ये यही बताता है कि आदमी जो है वो रचना है, ना कि रचनाकार। And man is not ruler but proxy ruler. और आदमी जो है वो शासक नहीं है बल्कि उसके ऊपर परमेश्वर शासक करने वाला है। So man is not master but man is servant. और आदमी जो है वो मालिक नहीं है बल्कि वो नौकर है और परमेश्वर उसका मालिक है। So God is creator and ruler and master, but man is the creature, proxy ruler and servant. और हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो रचनाकार है, शासक है और मालिक है, जबकि आदमी जो है वो रचना है, नौकर है और उसके ऊपर शासन किया जाता है। So we can see the relationship, the real relationship with God and man is, we can see that creator and the creature. और जो मुख्य जो उनके बीच में रिलेशन है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो रचनाकार है और आदमी जो है वो उसकी रचना है। So the creature, the man must relate to God, the creator. और सबसे पहली बात ये है कि जो आदमी है वो परमेश्वर से संबंध रखता है। And
God is ruler, man is proxy ruler. So the proxy ruler must obey the ruler. और परमेश्वर जो है वो शासन करने वाला है आदमी के ऊपर, और इसीलिए आदमी को जो है परमेश्वर की सारी बातें माननी चाहिए। It means the owner, company owner, and the CEO. CEO have all authority, but he must get permission from the company owner, no, like that. So the ruler, the proxy ruler must obey to the ruler. जैसे कंपनी में हम देखते हैं एक सीईओ होता है, वो कंपनी का सारा प्रभार संभालता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले उसे कंपनी के मालिक की परमिशन लेने की जरूरत होती है। ऐसे ही परमेश्वर ने आदमी को अधिकार तो दिया था पृथ्वी का, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर ने अपने आप को रखा था ताकि वो उसकी स्वीकृति में सारे काम करे। And God is master. और परमेश्वर जो है वो मालिक है। And man is servant. So man must serve to master. और इसीलिए जो आदमी जो है उसको परमेश्वर की जो है सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर मालिक है। So this is the correct relationship with God and man. और ये जो है यही संबंध है परमेश्वर का और आदमी का। So God made covenant with man. और इसी तरह परमेश्वर ने आदमी को बनाया था। It is spiritual blessing to substitute. और यही है जो आत्मिक आशीषें थी परमेश्वर ने दी थी। And material blessing also for the physical benefit. और भी बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उसे दी थी। So God made covenant with man. Genesis chapter 2:7. Please read. उत्पत्ति 2 का 7 पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आमीन। So God made covenant with man not to eat the forbidden fruits, knowing good and evil. परमेश्वर ने जो है वो आदमी को मना किया था कि वो भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है उसे ना खाए। God said, if you eat this fruit, you surely die. और परमेश्वर ने उसको बोला था कि यदि तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। But they ate the fruit. लेकिन उन्होंने उस फल को खाया। We can see in Genesis chapter 3, they ate the fruits and spiritually they died. और इसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 1 से 6 में कि उन्होंने फल को खाया और वो आत्मिक रीति से मर गए। The correct relationship with God and man when they were very happy with God. और जो सही रिश्ता था परमेश्वर के साथ आदमी का कि वो परमेश्वर के साथ में बहुत खुश थे। But when they ate the fruits, when they ate this fruit which God said not to eat. लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया जिसको खाने के लिए खुदा ने उन्हें मना किया था। God said, you surely die. परमेश्वर ने बोला था कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। So did they died physically? क्या वो जो है शारीरिक रूप से मरे? No. They not die physically, but what happened? The spirit, the God spirit is went out from them. और वो शारीरिक रूप से तो नहीं मरे, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा था वो उनसे दूर हो गया और वो आत्मिक रूप से मर गए। It means when God created man, he created with his spirit, but when they disobeyed, the spirit out. और जैसे परमेश्वर ने आदमी को बनाया था तो वो आत्मा के साथ में शरीर को जोड़कर बनाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया तो आत्मा उनसे अलग हो गया। So spiritually they died and there were fundamental problem raised. और वो आत्मिक रूप से मर गए और उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। The first problem is because why they disobeyed God's word? Because Satan came and deceived man. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि शैतान उनके पास आया और उसने आदमी को जो है भरमा दिया। Satan came and told to Eve,
if you eat this fruit, you will not die, but you become God. और शैतान ने उन्हें भरमाया कि तुम इसे खाने से नहीं मरोगे बल्कि तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। But God said, if you eat this fruit, you surely die, which is true. What happened after eating this fruit? लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि तुम मर जाओगे, और वैसा ही हुआ खाने के बाद। They not become like God, but they separated from God. वो परमेश्वर की तरह तो नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर से अलग हो गए। So three fundamental problems arised. First, Satan deceived them and they become the child of devil. और सबसे पहली हम देखते हैं 3 तरह की यहाँ पे परेशानी हुई। पहली परेशानी यही थी कि शैतान ने उन्हें भरमाया और वे बुराई की संतान हो गए या पाप की संतान हो गए। We can read John chapter 8:44. और इसको हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 पद में। Yeah, please read. इसको पढ़ेंगे हम। John chapter 8:44. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आमीन। Amen. They followed and they obeyed the Satan word. They disobey God's word. So they followed Satan. They become slave to Satan. और क्योंकि उन्होंने शैतान की बात को माना और परमेश्वर की बात को नहीं माना, और इसीलिए शैतान ने उनको भरमा करके अपनी संतान बना लिया। So they become child of devil. और इसीलिए वो जो है वो शैतान की संतान बन गए या बुराई की संतान बन गए। They lost their real happiness being with God and they sin against God. We can read Rome chapter 3:23. और उन्होंने जो अपनी वास्तविक खुशी थी उसको खो दिया और वो अभी पापी बन गए, जिसको हम देख सकते हैं रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में। Romans chapter 3:23. और रोमियो की पत्री उसका 3 और उसका 23 हम पढ़ देंगे। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। Amen. So the first problem, fundamental problem is Satan. Second is sin. They disobeyed God's word so that they separated from God. और पहली जो समस्या थी वो ये थी कि शैतान उनके पास आया और उसने उन्हें भरमाया, और दूसरी समस्या ये थी कि पाप उनके जीवन में आया और पाप आने के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए। Ephesians chapter 2:1. और उसको हम देख सकते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद में। Please read Ephesians 2:1. हम पढ़ देंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 उसका 1 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Amen. आमीन। आमीन। So these three fundamental problems rise. When they ate fruit, they become slave to Satan and they sin against God and they separated from God. God sent them out from the Garden of Eden. और ये 3 समस्याएं थी जो उनके साथ में घटित हुई। पहला कि शैतान उनके पास आया और उन्हें भरमाया, दूसरा वो पाप के वश में हो गए, तीसरा वो परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर ने उन्हें अपनी वाटिका से निकाल दिया। So we can read Romans chapter 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. और इसे हम पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 5 के 12 में। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। So already we read John chapter 8:44. The devil become father of this world and he become the ruler. But God gave the ruling authority to mankind, but they lost. और जैसा कि हम यूहन्ना और उसका 8 और 44 में पढ़ सकते हैं कि अभी जो है शैतान जो है इस पूरी पृथ्वी का शासक बन गया है, जिसको परमेश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्य ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था।
In Romans 3:23 says, already we read that all have sinned and come short of the glory of God. और जैसा हमने रोमियो की पत्री उसका 3:23 में पढ़ा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। So when man disobeyed God's word and separated, they lost the eternal life. और जब आदमी ने पाप किया और वो परमेश्वर से अलग हुए तो उन्होंने अपने अनंत जीवन को खो दिया And they lost the real happiness with God. और उन्होंने अपनी जो वास्तविक खुशी थी उसको भी खो दिया And they lost the real relationship with God. और उन्होंने जो परमेश्वर के साथ में संबंध था उसको भी खो दिया। I already said that He is the creator, we are the creature, and He is the ruler, and we are the proxy ruler, and He is the master, and we are the servant. और They lost this relationship. जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है वो रचनाकार है और हम उसकी रचना है और परमेश्वर जो है शासक है और वो हमारे ऊपर शासन करता है और परमेश्वर जो है मालिक है और हम उसके सेवक है, लेकिन इन सभी रिश्तों को आदमी ने पाप के द्वारा से खो दिया। So all men become sin, so that God's promise, Genesis 3:15 says, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. और जैसा You कि can हम read in your language, please. जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति 3:15 में कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। So when they spiritually die and they separated from God and sin against God, so God's promise already promised the Christ in Genesis 3:15. और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर शैतान की आज्ञा को माना और पाप उनके जीवन में आया और परमेश्वर उनसे अलग हो गया, तो परमेश्वर ने एक वायदा रखा है उत्पत्ति उसके 3 और 15 में। So God's promise is Christ. He promised Christ. Christ will come and He will be crushing the head of Satan. और इस पद में जो है ये छुपा हुआ है कि मसीह जो है वो इस दुनिया में आएगा और वो शैतान को नाश कर देगा। Genesis 3:15 is the first gospel verse in the Bible. और पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति उसका 3 और 15 है, ये पहला सुसमाचार का पद है। And this Genesis 3:15 is the original gospel. और जो ये पद है यही जो है ये वास्तविक सुसमाचार यही है। So here God promised Christ will come. Christ will come and crush the head of Satan. और ये पद बताता है कि एक दिन मसीह जो है वो इस जगत में आएगा और वो शैतान को नाश कर देगा। So I will explain later. But now, because of this three fundamental problem, what happened? There is a 6 unbeliever status. और इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो तीन समस्याएं उनके जीवन में आई वो देख रहे हैं हम 6 पॉइंट्स के द्वारा से जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। So you can write down the 6 unbeliever problem. From that onwards, people are suffering by the spiritual problems in their life. और ये जो 6 समस्याएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उनके लिए हैं जो अनबिलीवर से जो विश्वास नहीं करते। The first is they belonging to the devil. और पहली बात ये है कि वो बुराई से संबंध रखते हैं, बुराई की संतान है। John 8:44 already we read. They become the child of devil and they belonging to the devil. और यूहन्ना 8:44 में हमने पढ़ा है कि वो शैतान की संतान है और बुराई से संबंध रखते हैं। And second problem is they become worship idol. और दूसरी समस्या ये है कि वो मूर्ति पूजक है। Because they separated from God, there is no relationship with God, so they made themselves the idols and they become to worship the idols. Exodus chapter 24 and 5. Can you read it, please? Exodus chapter 24 and 5. जैसा कि हमें पता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए और उन्होंने खुद के लिए जो है मूर्तियां बना ली और वो उनकी उपासना करने लगे, और जिसे हम देखते हैं निर्गमन और उसका 5 में हम पढ़ देंगे। So the people you can see in India, in the world, wherever we go, there is idol worshippers.
और हम देख सकते हैं सब जगह पे, खास करके भारत देश में हम देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे जो है वो मूर्ति पूजक लोग रहते हैं। Why they worship idols and begin to idol? Because they cannot see God, because they already separated from God. और क्यों वो मूर्ति पूजा करते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि वो परमेश्वर से अलग हो गए। So what is idol worship? We have to know very important. Idol worship, wherever you go in the temple, know what you see in the temple inside. और हमको समझना जरूरी है कि मूर्ति पूजा क्या है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप उसके अंदर क्या देखते हैं? Anybody can answer what is unique in all the Hindu temples? क्या कोई What बता you सकता है? can see? Can you tell क्या- anybody? क्या कोई बता सकता है कि मंदिर में हम क्या देखते हैं? मूर्तियों को देखते हैं और उनकी उपासना करने वाले। A lot of idols and their worshippers. Yeah. In the idol temple, you can see the serpent, the idol serpent everywhere. Maybe it can be like that, and in the neck, and in the temple, no. You can see in the Varanasi also. I have seen a lot of in the Hindu temple. There is a snake, serpent. और हम देखते हैं ज्यादातर मंदिरों में हम देखते हैं सांप देखते हैं, किसी के गले में देखते हैं, किसी मंदिर में देखते हैं या किसी और जगह देखते हैं, ज्यादातर हमें सांप दिखाई देते हैं। Because in the beginning, Satan used the serpent to deceive the mankind. और इसका कारण यही है कि जो शैतान है उसने आदमी को बहकाया है। It's all idol worship behind Satan is receiving the honor and glory. और जितनी भी मूर्ति पूजा होती है उससे जो सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा मिलती है वो शैतान को मिलती है। So that the Satan separated man from God, so he want to worship him. That's why he become arrogant and he deceived the humankind. और क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो शैतान था वो नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर को मिले, और इसीलिए उसने आदमी को भरमाया और उसकी महिमा खुद को ले लिया। Because of worshipping idol, they become very serious spiritual problem now. और मूर्ति पूजा के द्वारा से ही वो बहुत सारी आत्मिक समस्याओं में गिर गए। Today many people are suffering by mentally and और कई लोग physically. हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं। That's why the third problem is mental problem. Mentally they disorder and mentally they affect and they have a lot of stress. There is no peace in their mind. और वो मानसिक रूप से परेशान हो गए और वो इतने तनाव में रहने लगे कि उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई शांति नहीं थी। So because of mental problem, many people, they could not sleep in the night time, and many people suicide, and many people go out and they do whatever they want. और कई सारे लोग हैं जो वो इसी मानसिक परेशानी की वजह से रात में सो नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं और कई सारे और ऐसे काम हैं जो उल्टे वो करते हैं। Maybe in Christians also they have a lot of mental problems. और मसीहियों में भी हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। The human, they don't have the real peace and real happiness with God. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वास्तविक आनंद और वास्तविक शांति नहीं है। And you can see in Matthew chapter 11:28. और इसको हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 और 28 पद में। And fourth is physical problem. और चौथा जो है वो है शारीरिक समस्याएं। Acts chapter 8, 4-8. और प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 4 से 8 में हम इसे देख सकते हैं। Many people suffering physically, they could not heal their body, and a long time they stay in the hospital and they suffer a lot. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं, लंबे समय से वो अस्पताल में हैं, उनको चंगाई नहीं मिल रही है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। Even today, incurable diseases many rise in the world. Today we see even the COVID-19 also incurable disease. और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आदमी का नियंत्रण नहीं है, और ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां संसार में उभर रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी के समय में कोविड-19 है जो चारों तरफ फैल रहा है।
So mentally and physically people suffered because of the fundamental problem. और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मानसिक रूप से तनाव में है। Today people have a lot of problem. Why? Because of the fundamental problem. Satan and sin, they separated from God. और आदमी जो है वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं हैं कि शैतान ने उसको भरमाया, उसने पाप किया और वो परमेश्वर से अलग हुआ। So when God created man, why God created man? Being with God. We have to, must we live with God. If we separated, that's why this problem. और आज परमेश्वर ने जो आदमी को बनाया था वो अपनी संगति में रहने के लिए बनाया था, लेकिन वो परमेश्वर से अलग हुआ, इसकी वजह से ही ये समस्याएं आए। God created fish in the sea. It must stay in the sea. If we take the fish from the water, it will die. और परमेश्वर ने जो मछलियों को बनाया वो समुद्र में रहने के लिए बनाया, यदि हम उन्हें बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। And God created trees in the root inside the earth. If we cut the tree, it cannot live, it will die. और परमेश्वर ने जो पेड़ों को बनाया वो जड़ों से जुड़े रहने के लिए बनाया, यदि हम उसे काट देंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। So same way, we are created by God, being with God, live with God. But we separated, that's why spiritually we die and have a lot of problem. और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अपनी संगति में रहने के लिए बनाया, लेकिन हम अलग हुए और इसी की वजह से हम आत्मिक रीति से मुर्दा हो गए। So here, fifth problem is, finally we die and go to hell. The judgment is hell. और जो पांचवी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी वजह से हम जो है मर गए और नरक के भागी हो गए। Luke chapter 16, 19 to 31, we can see there is a rich man and Lazarus. Both they die. और जैसा हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से 31 में कि लाजर जो था एक गरीब मनुष्य और एक अमीर आदमी था, वो दोनों मरे। So what happened? The rich man went to hell, but Lazarus, he went to heaven and lay down on the Abraham's. और जैसा हम देखते हैं कि जो अमीर आदमी था वो नरक में गया और लाजर जो था वो स्वर्ग में गया इब्राहिम की गोद में। But this rich man, when he lived in this earth, he was very satisfied with all the blessing of this world, but Lazarus, he suffered for even food. और जो अमीर आदमी था जब वो संसार में रहता था तो वो बड़ा संतुष्ट था, उसके पास संसार की सारी आशीषें थी, लेकिन लाजर के साथ में वैसा नहीं था। But this rich man, he never helped and he not lived with the faith in God, but when he died and went to hell. और जो अमीर आदमी था उसने उसकी तरफ कभी उसकी सहायता नहीं की, उसे देखा नहीं और ना ही वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था और इसीलिए वो नरक में चला गया। So those who separated from God and live worldly life and they are slave to Satan, so when they die they go to hell. There is no choice, no other choice. और जितने भी ऐसे लोग हैं जो शैतान के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं रखते, उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, वे सारे नरक में जाएंगे। So next, this problem is not stop but go to other next generation, from their child and child to child. The same problem is continually happening in their life. और ऐसा नहीं है कि ये समस्या यहीं पर समाप्त हो गई, ये समस्या आगे भी चलती है और उनके बच्चों, उनके पोतों, उनके पड़पोतों तक जाती है और वो सभी पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। So you can note down Matthew chapter 27, 25 and Luke, Gospel of Luke 23 and 28. You can just note down. और इसको हम बस लिख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 का 25 और लूका रचित सुसमाचार उसका 23 और 28। So for solving this problem, the human, they take lot of effort to solve this kind of problem by religion. और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आदमी ने जो है धर्मों का इस्तेमाल किया और धर्म के द्वारा से उसको दूर करने का प्रयास किया। So the first human method
because the human also, they're trying to solve this kind of problem, mental problem and physical problem and all their family problems. They want to try to solve by religion. और आदमी की जो बहुत सारी समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी, व्यक्तिगत समस्याएं थी, इन सभी को उसने जो है धर्म के द्वारा से दूर करने का प्रयास किया। Religion means they built a lot of temples and they go here and there and worship and do sacraments and lot of things they are doing to solve this kind of problem. और धर्म का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया और बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गए, बहुत सारी जगह उन्होंने पूजा की और उन्होंने इनके द्वारा से ही उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। And some people, they do good deeds. If I do और good deeds to other people, give food and money and help, this kind of help, so I will go to heaven. They believe like that. और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अच्छे कार्यों के द्वारा से जो है इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। उनका मानना है कि यदि वो किसी भूखे को खाना खिला देंगे, किसी की मदद कर देंगे, तो ऐसा करने से वो स्वर्ग में चले जाएंगे। And some people, they follow the philosophy and some people follow the law. This kind of method human is following now. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे नियम फॉलो करने से, ऐसे सिद्धांत फॉलो करने से वो स्वर्ग में चले जाएंगे। Even though they follow this kind of method, they cannot solve this kind of spiritual problem. और इतने सारे काम करने के बाद भी वो जो उनकी आत्मिक समस्याएं थी वो खत्म नहीं हुई। But only the way is to solve, the solution is only God's solution we have to follow to solve this kind of problem. और इसका बस एक ही समाधान है और वो है मसीह है जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। So fourth is, now I am giving a fourth point, the God's solution. और मैं आपको जो चौथा पॉइंट है वो बता रहा हूँ, वो है परमेश्वर का समाधान। So first I told God's creation, number one, God's creation. Second is creation principle and fundamental problem. पहले मैंने बताया कि परमेश्वर की रचना, उसके बाद मैंने बताया जो मूलभूत समस्याएं थी, और तीसरा पाप बताया, और चौथा मैं बता रहा हूँ परमेश्वर का समाधान। Third is 6 unbeliever status. तीसरा जो था वो था कि जो 6 अमसीही हैं उनके जीवन में समस्या है। Fourth is God's solution. और चौथा जो है वो परमेश्वर का समाधान है। So what is God's solution? God's solution is Christ, sending Christ to this earth to save the people. और परमेश्वर का जो समाधान है वो ये है कि उसने मसीह को इस जगत में भेजा आदमियों को बचाने के लिए। So you can read John chapter 3:16. Everybody know this word, very familiar verse. John 3:16. हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 पद। सब लोग इसे जानते हैं। Please क्योंकि read. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। Amen. Even though we separated from God, still God loves the humankind. और जबकि हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, लेकिन परमेश्वर हमें तब भी प्यार करता था। So he sent his only one son to save this world. और इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि हम बचाए जाएं। So Romans 5:8. और हम पढ़ेंगे Romans 5:8. रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ देंगे। जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए मरा। आमीन। Amen. God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Although we are sinners, but Christ came and died for us. और जबकि हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर मसीह जो है वो जगत में आया और हमारे लिए अपनी जान को दी। Amen.
So we are not righteous people. We are not holy people, but we are the sinner because of disobedience to God. We become sinner, but Christ came for the sinners. और हमने क्योंकि जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए हम ना तो धर्मी हैं और ना ही हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर जो था, मसीह जो था, वो अधर्मियों के लिए ही आया। 1 Corinthians 15 verses 3 and 4, I will read out in English. For I deliver unto you first of all that which I also received, और how जैसा that कि Christ died for our sins according to the scripture. और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 3-4 में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। Amen. So Christ died for our sin according to the scripture. We और already read Genesis 3:15. Christ will come and crush the head of Satan. और जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है कि मसीह जो मरा वो वचन के अनुसार मरा, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। So this is the prophetical word in the Old Testament. Genesis 3:15. और ये जो है उत्पत्ति 3:15 जो है, ये एक भविष्यवाणी का वचन है। So you can read Isaiah 7:14. और आप लोग पढ़ सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 14। Isaiah 7:14. यशायाह 7 का 14। Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। So, Amen. according to the Old Testament prophetical words, Christ will come to this world as a human. और जैसा हम देख रहे हैं कि पुराने नियम के अनुसार ये भविष्यवाणी के वचन है, जिनके अनुसार ही मसीह इस जगत में आया ताकि वो मानव जाति को बचा ले। A virgin shall conceive and bear a son. His name is Emmanuel. जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। So where its fulfillment, the New Testament is the fulfillment. We can read the fulfillment of this word is Matthew chapter 16 and 16. और इस भविष्यवाणी को हम कहाँ पूरी होते हुए देखते हैं? इसको देखते हैं हम पूरी होते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और 16 में। And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. और जैसा हम देखते हैं मत्ती रचित 16:16 में, you can see in Matthew chapter 1 verse 21. और जैसा कि यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 और 21 में भी लिखा हुआ है, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. जैसा लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Verse 23, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. जैसा कि वर्ष जो आयत 23 है उसमें लिखा हुआ है कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। His name is Emmanuel, and Jesus, his meaning is God with us. और उसका नाम जो है इमैनुअल है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। So Christ came to this world as a Jesus. और मसीह जो है वो यीशु के रूप में इस जगत में आए। His name is Jesus, but he is the Christ. Christ means three positions, three offices. उसका नाम, और वैसे उसका नाम यीशु है, लेकिन उसको मसीह बोलते हैं। मसीह का मतलब होता है दूसरों के लिए जीने वाला। So it's said that mystery of Christ, mystery of Christ.
और यही जो है वो मसीह का रहस्य है। Jesus means the name of the Lord. और यीशु का मतलब है कि परमेश्वर का नाम। Christ means the three offices, three position, the title. और मसीह का जो मतलब है वो 3 रूपों में हम देख सकते हैं। Christ is not name, but it's a position, title. You know title? Like और I will explain. My name is Sasi Kumar, just a name. But I am pastor. If I am doctor, Dr. Sasi Kumar. If I am pastor, Pastor Sasi Kumar. So my position, my title is very important to identify who I am. और जैसा कि हम देख सकते हैं जो मसीह है वो सिर्फ टाइटल है, वो नाम नहीं है। जैसे कि मेरा नाम जो है वो शशि कुमार है और मैं एक पास्टर हूँ, तो पास्टर मेरा टाइटल है। तो मुझे जानने के लिए मेरे टाइटल को जानना जरूरी है, जो एक पास्टर है। So we call people, he's a carpenter and doctor and driver and he's the engineer and advocate. This is the title of the people. और बहुत सारे ऐसे टाइटल हैं जो हम संसार में देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। So डॉक्टर, इंजीनियर। what is title of Jesus? Jesus is the Christ. और यीशु का जो टाइटल है वो क्या है? वो है मसीह। So Jesus the name, Christ is the title. It means three office, three work of Christ, work of God. और यीशु जो है वो नाम है, और जो क्राइस्ट है वो उसका शीर्षक है, और उस शीर्षक के 3 मतलब है। I will explain a little more about this. Christ is the Lord. Lord. सॉरी। Christ is the Lord. Lord's position. और Lord, God's position. ओके, पहला है कि मसीह जो है वो परमेश्वर की जो है एक पोजीशन है। So Christ means anointed one. और मसीह का जो मतलब है वो है अभिषिक्त। So Jesus means savior, you know already, but Christ means anointed one, the meaning. और यीशु का मतलब है बचाने वाला, लेकिन मसीह का मतलब है अभिषिक्त। So what kind of anointing he had? We can see in the Old Testament. When we read all the Old Testament, there were 3 people were anointed. और अगर हम पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम में हम 3 आदमियों को देखते हैं जो अभिषिक्त थे। So God anointed the prophets. परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को आशीषित किया। And God anointed the priest. परमेश्वर ने पासवानों को आशीषित किया। And God anointed king. और परमेश्वर ने राजाओं को अभिषिक्त किया। Like Samuel, Moses and David and people. They have each person one position. He is the prophet and priest and king. और जैसे दाऊद, सैमुअल, मूसा और भी बहुत सारे थे, उनके पास पोजीशन थी। कोई भविष्यद्वक्ता था, कोई पासवान था, कोई राजा था। In the Old Testament, God anointed people to anointed the prophets to lead the people to God, and God anointed the priests to forgive their sin, and God anointed the kings to take over and protect the people. और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को अभिषिक्त किया ताकि वो उसकी प्रजा को चला सके, और पासवानों को अभिषिक्त किया ताकि वो लोगों को जो है परमेश्वर के पास ला सके, और राजाओं को अभिषिक्त किया ताकि वो अच्छे से राज्य को चला सके। But nobody can deliver and nobody can lead the people as God wants, because Christ should come and he should die for us, and he should deliver us from all the satanic forces and all the sinful nature. और उनमें से कोई भी वैसा नहीं चल सका जैसा परमेश्वर उन्हें चाहता था, और इसके लिए जरूरी था कि मसीह जगत में आए और वो शैतान के जितने भी श्राप हैं वो हमारी जिंदगियों से दूर कर दे। So the work of prophet is to lead, show the way to meet God and receive God's word and tell to the people, and the people should lead to God's way. This is the work of prophet.
और भविष्यद्वक्ता का जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो परमेश्वर के मार्ग पर लोगों को लेकर के जाए और जो परमेश्वर उन्हें बोलता है वो लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग जो है वो सही रास्ते पर चल सके। And the work of priest is to forgive their sins. You know, the Old Testament, the priest only can enter in the God's temple, and he can bring all the forgiveness from there. और जो पासवान का कार्य है वो लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलवाना है, क्योंकि आप देखते हैं कि पुराने नियम में केवल याजक ही मंदिर में जा सकता था और वो लोगों की माफी के लिए प्रार्थना करता था। Why? Because there were separation. People cannot enter into the temple because of the fundamental problem. They should stay outside. और क्योंकि मनुष्य ने पाप कर दिया था और इसीलिए वो परमेश्वर से अलग हो गया था और वो मंदिर में नहीं जा सकता था बल्कि वो बाहर रहता था। But today we are inside the temple because God solved already all the problems. और आज हम मंदिर में जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। So we see each by the reading the scripture. First is the prophet, true prophet. Christ is the true prophet. Read Hebrews chapter 10, 19 to 22. और इसको हम वचन के द्वारा से देखेंगे कि मसीह जो है वो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है जिसको दिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 19 से 22 तक। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। So Christ is not only prophet, he is the true prophet, but other people anointed prophets. He is the only true prophet. और हम देखते हैं कि मसीह जो है वो सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं है बल्कि वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है, और लोग हैं वो भविष्यवक्ता है, लेकिन मसीह जो है वो अकेला है जो सच्चा भविष्यवक्ता है। So when Christ crucified on the cross, the church curtains, which the separation, the curtains from top to bottom tear into two. और जब हम देखते हैं कि जब मसीह ने क्रूस पर अपने जान को दिया, उसी समय जो मंदिर का पर्दा था वो दो भाग में फट गया था। By the crucifixion of Jesus, the separation problem is solved because he is the true prophet. He solved the separation problem, the first fundamental problem. और परमेश्वर के क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा से जो मसीह से अलगाव वाली समस्या थी, जो मूलभूत समस्या थी, उसका समाधान हो गया था। So I told that three fundamental problem: separation, sin, Satan. और मैंने आपको तीन मूलभूत समस्याएं शुरू में बताई थी। पहला था कि शैतान और पाप और परमेश्वर से अलगाव। As a true prophet, he solved the first fundamental problem, the separation problem between God and man. और जो मुख्य समस्या थी वो यही थी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव आ गया था। And second is, he is the true priest. और दूसरी बात, हम दूसरी विशेषता देखते हैं कि वो जो है एक सच्चा याजक है। You can read Hebrews chapter 9, 11 to 6. You can read just, yeah. इसको हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों उसका 9 और उसका 11 से 16 तक पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमें छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। आमीन। Amen. Not by the animal blood, but
by his own blood he shed all the blood on the cross for our all sinful nature. और किसी जो है जानवर के खून के द्वारा से नहीं, बल्कि उसके खुद के खून के द्वारा से उसने छुटकारा दिया है। So by shedding his blood, God delivered us from the sin. और अपने खून को बहा करके उसने हमें पाप से छुटकारा दिया है। So for all the world, all the sin, even past, present and future, or all sin is already forgiven. और जितने भी हमारे पाप हैं, वो चाहे बीते समय के हों, वर्तमान के हों या भविष्य के हों, परमेश्वर ने माफ कर दिए हैं। So there were original sin from Adam, and what we do, our sin, all the sin will be forgiven by the blood of Christ. और आदम से लगा करके अभी तक के जितने भी पाप थे जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, वो सब माफ कर दिए गए हैं। So the original sin already removed by the blood of Christ. Those who believe Christ, they can be delivered. और जो मूलभूत पाप था वो परमेश्वर के खून के द्वारा से दूर कर दिया गया है उनके लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। So we believe Christ as our personal savior. We accept Christ, so that we have to believe we already forgiven. There is no sinners. But what we do, we have to ask forgiveness. और ये बात है कि यदि हम मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हमको ये विश्वास कर लेना है कि हमारे पाप जो है वो माफ कर दिए गए हैं। So the third thing is, the second problem is solved. Second problem, fundamental problem is sin. It's solved by Christ. और जो दूसरी समस्या थी पाप, उसको भी परमेश्वर के द्वारा समाधान कर दिया गया। So the third problem is Satan. और तीसरी जो समस्या है वो है शैतान। Who can fight against Satan? Only Christ can. So that he become the true king and crush the head of Satan on the cross. और कौन शैतान से लड़ सकता है? वो सिर्फ मसीह है, और इसीलिए उसने कलवरी क्रूस पर उसे हरा दिया। So as a true king, he victory over the Satan and the death and the hell. और तीसरे कैरेक्टर के रूप में हम देख सकते हैं कि वो एक सच्चा राजा है जिसने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। So you can read Hebrew chapter 2, 14 to 16. और इसको हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 से 16 में। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो स्वर्गदूतों का नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। So as a true king, he crushed and victory over Satan and the death and the hell. और ये एक सच्चे राजा के रूप में उसने शैतान का नाश किया और मृत्यु से और नरक से छुटकारा दिया। So by Christ on the cross, the three mystery were happened. The three fundamental problem is solved. और ये जो क्रूस के 3 रहस्य हैं, इन्हीं के द्वारा से जो 3 मूलभूत समस्याएं थी उनका समाधान हुआ। So John chapter 19:30 says, finally Jesus said on the cross, it is finished. और जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो क्रूस की समस्या थी वो समाधान का एक रूप थी। Why he said it is finished? He finished these 3 fundamental problem on the cross. और क्यों यीशु ने क्रूस पर ऐसा बोला कि पूरा हुआ? क्योंकि उसने 3 जो मूलभूत समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया था। So the one man from Adam, we all the people of this world, we received the sin and this problem, but by the Christ, the second Adam, we all received the forgiveness and the blessing of being a child of God. और जैसा कि एक आदमी के द्वारा इब्ने आदम के द्वारा पाप जगत में आया और सारे मनुष्यों में फैल गया, ठीक उसी प्रकार दूसरे आदम यानी कि मसीह के द्वारा से जो है माफी इस जगत में आई और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें मिली। So Matthew 16:16, Peter confessed that Jesus is the Christ.
और मत्ती 16 के अनुसार हम ये बात स्वीकार करते हैं कि यीशु जो है वो मसीह है। So he said that you are the son of living God. You are the Christ, son of living God. और वो बताता है कि तुम जो है जीवित परमेश्वर की संतान हो। So Jesus came this world as a Christ to solve these all fundamental problem as a true prophet and true priest and true king. और यीशु जो था वो इस संसार में आया ही इसलिए था ताकि वो जो तीनों मूलभूत समस्याएं हैं उसको वो दूर कर दे, एक सच्चे भविष्यवक्ता के रूप में, सच्चे पासवान के रूप में और सच्चे राजा के रूप में। So you can read 1 John chapter 5 verse 1. Please read. और 1 John 5:1. और कोई पढ़ देगा पहला यूहन्ना उसका 5 और 1। What is our belief? What is our belief? What you are believing now today? What we must believe? हमारा विश्वास क्या है, हम क्या विश्वास करते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। कोई पढ़ देगा पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 1 पद। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। Amen. That whoever believes that Jesus is the Christ, they are born of God. This is very important. और जो भी मसीह पर, जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो मसीह हैं, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So many people not believing in the correct way. और They don't know what is their belief. और कई लोग जो है उनको यही नहीं पता है कि वो क्या विश्वास कर रहे हैं। Many people go to church and listening God's word, but they don't know what to believe and who is Christ, who is Jesus. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो क्या विश्वास करते हैं और यीशु कौन है। So the correct faith confession is we have to confess that Jesus is the Christ. और जो सही जो विश्वास है वो ये है कि हमको ये विश्वास करना है कि यीशु जो है वो मसीह है। Amen. आमीन। Everybody say Jesus is the Christ. सभी कहेंगे कि यीशु जो है वो मसीह है। Please everybody confess Jesus is the Christ. सभी कहेंगे यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। No, louder please. जोर से बोलो। Jesus the Christ. यीशु मसीह है। Amen. आमीन। What is the evidence that Jesus is the Christ? Because the first evidence is the virgin birth. Matthew 1:23. Is the birth is virgin birth. There is no other people virgin birth. और इस बात का प्रमाण क्या है कि यीशु ही मसीह है, और इसका सबूत क्या है, इसको देखते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 और 23 में कि उसका जन्म जो है वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। ऐसा कोई भी नहीं है जो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ हो। The second evidence is the cross of Jesus. Nobody went to cross and died for the human being. और दूसरा सबूत ये है कि उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे दिया, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मानव जाति के लिए क्रूस पर And अपनी the जान दी। third evidence is the resurrection of Jesus Christ. Nobody resurrected after dying. Only Jesus resurrected. और तीसरा सबूत ये है कि वो मृतकों में से जीवित हुआ, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। So this is the three evidence: virgin birth, cross of Jesus, and resurrection says that Jesus is the only Christ. और ये जो तीन सबूत हैं कि वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और मृतकों में से जीवित हुआ, यही बताते हैं कि यीशु जो है वही मसीह है। Say please Amen. सभी कहेंगे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is the Christ, and those who believe, those who trust, and those who follow Christ's word, so God is giving the 7 blessing. और यीशु ही मसीह है। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें 7 प्रकार की आशीषें देता है। So this is number 5, 7 blessing we are going to see. और जो 5वां भाग है उसमें हम देखते हैं कि 7 आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देता है। So the first is become child of God. और पहली आशीष ये है कि हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। John chapter 1 verse 12. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 और 12 के अनुसार, As soon as we believe Christ, Jesus the Christ, the position, we are the child of devil, but our position change into child of God.
और जैसे ही हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा जो स्थिति है वो बुराई की संतान से होकर के परमेश्वर की संतान हो जाता है। Because all our sin forgiven and we become the child of God. This is a great blessing. और परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष है। So this 7th blessing is the real blessing from God. Today the pastors are saying in the church there are not a real blessing from God. और ये 7 प्रकार की जो आशीषें हैं यही है जो वास्तविक आशीषें परमेश्वर हमें देता है। This all the real blessing only God can give. No other people can give. और यही वो आशीषें हैं जिसको आदमी नहीं दे सकता, ये परमेश्वर के द्वारा ही दी जाती है। The second blessing is guidance of the Holy Spirit. और दूसरी जो आशीष है जो परमेश्वर हमें देता है वो है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। 1 Corinthians chapter 3:16. Please read. और पहला कुरिन्थियों उसका 3 और 16 को हम पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। Amen. We are the temple of God. God's Spirit is in us. So we are the temple. The church building is not a temple. और हम जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जो चर्च है वो जो है वो मंदिर नहीं है। So in the Old Testament, church building is very important, but in the New Testament, we become the church of God. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो चर्च की इमारत होती थी वो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन नए नियम के अनुसार हम जो है हम खुद एक जो है चर्च है, परमेश्वर की कलीसिया है। In the Old Testament, we are separated from God, but Christ came and solved all the problem. He is the solution to all the problem. So he can enter into us when we become the child of God. और पुराने नियम में हम पाप के द्वारा से परमेश्वर से अलग हो गए थे, इसलिए हम मंदिर में नहीं जा पाते थे, लेकिन नए नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ किया और हम एक मंदिर के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। So do not worry, you are the temple of God and God's Spirit is in you. और इसलिए चिंता न करें, आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। The third blessing is answer to our prayer. This is very important because many people pray but there is no answer. और तीसरी आशीष जो परमेश्वर हमें देता है वो है हमारी प्रार्थना का उत्तर। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। But when we pray, God will answer to your prayer. और क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So you can note down John chapter 14, 16 and 17. और इसको हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 और उसका 16-17 में हम पढ़ देंगे। यूहन्ना 14 और उसका 16-17 में। So the fourth blessing is authority over darkness. This is also very important. We have authority to cast out the demons and the sickness and the family problem and all the darkness. और चौथी जो आशीष परमेश्वर हमें देता है वो है अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार देता है। हम दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं, हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। So as a child of God, you don't fear of any demonic forces and any problem. You can manage by the authority given by Jesus Christ. और परमेश्वर की संतान होने के कारण परमेश्वर हमें अधिकार देता है कि हमको किसी भी अंधकार की सामर्थ्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। So the fifth blessing is the help of the angels. Always the angels with us to protect us. और पांचवी जो आशीष है परमेश्वर हमें अपने दूतों के रूप में देता है जो हमारी रक्षा करते हैं। So you don't worry about anything. You are not alone. The angels, God sending angels to be with you always. और इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को हमारी मदद करने के लिए भेजता है। You can read Hebrew chapter 1:14. You can just note down. There is no time. I am going to finish. और इसको हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों उसका 1:14 में। अभी सिर्फ आप लिख लेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है। The sixth blessing is citizenship in heaven.
We are the citizenship having in heaven. और छठी जो आशीष परमेश्वर हमें देता है वो है कि वो स्वर्गीय राज्य में हमें जो है स्थान देता है। Philippians 3:20. You can note down, please. और फिलिपियो 3:20 में इस बात को हम देख सकते हैं। Seventh blessing is the world evangelization. God blessing us to spread the gospel worldly. और सातवीं जो आशीष परमेश्वर हमें देता है वो है कि हम सुसमाचार कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए रखा है। Only please read Matthew 28:18 to 20. Only one verse, please. कोई पढ़ देगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 कोई जल्दी से पढ़ दे। Finally, Jesus said, "Go and preach the gospel to every nation." और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जाओ और सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। Bulgo churwasa. Digo mo. Office din. Amen. आमीन। Yeah, we have the blessing of preaching the gospel. और परमेश्वर ने हमें आशीष दी है सुसमाचार सुनाने की। So finally, we must have 5 assurance. और हमें पांच चीजों के बारे में निश्चित रहना है। The one is assurance of salvation. पहला हमको निश्चित रहना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार दिया है। 1 John 5:11 to 13. Just note पहला down. यूहन्ना 5:11-13 में हम उसे देख सकते हैं। Second is assurance of answer of our prayer. दूसरा हमें ये इस बात के बारे में निश्चित रहना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। John 16:24. यूहन्ना उसका 14:24 में हम देख सकते हैं। Third, assurance of guidance of the Holy Spirit. तीसरा हमें इस बात के बारे में निश्चित रहना है कि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करता है। Proverbs 3:5 to 6. नीति वचन उसका 3:5-6 में हम देख सकते हैं। Fourth, assurance of forgiveness. और चौथा हमें इस बात के बारे में निश्चित रहना है कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है। 1 John 1:9. पहला यूहन्ना उसका 1 से 9 में हम देख सकते हैं। Fifth, assurance of victory. और पांचवा हमें इस बात के बारे में निश्चित रहना है कि परमेश्वर हमें विजय देता है। 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों उसका 10:13 में हम देख सकते हैं। So this is the message today, the way of salvation message. I hope that you understand what is the real gospel. The real gospel is Jesus the Christ. और यही जो संदेश था, जो उद्धार का मार्ग का संदेश था, जो हमें लेके जाता है, और यही वास्तविक सुसमाचार है। And he solved all the problems. और उसने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। Now you believe all your problem is solved? क्या तुम विश्वास करते हो कि अभी सारी समस्या समाधान हो गई है? Yes. Amen. आमीन। So believe strong and follow this word, and he is the true prophet and true priest and true king. और इसलिए हमें विश्वास रखना है और बने रहना है कि वो सच्चा भविष्यवक्ता है, सच्चा राजा है, सच्चा याजक है। 1 John 3:8 says that the Son of Man came to destroy the work of devil, and which we lost eternal life. Again we get the eternal life through Jesus Christ. और पहले यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि यीशु आया ताकि वो शैतान को नाश करके हमें फिर से अनंत जीवन का भागीदार बना दे। Amen. आमीन। Do you understand, everyone? हाथ उठा कर देखो। Yeah, this is the way of salvation. This is the way of salvation message. और यही उद्धार का मार्ग है। You have to write down every day this message. You have to write down. और आपको लिखना है बार बार इस संदेश को। Yeah, later we will send the chart paper so that very easily you can write down. और उसके बाद हम आपको कुछ चार्ट पेपर भी भेजेंगे जिसके द्वारा से आप आसानी से इस संदेश को लिख सकते हैं। Now I pray and finish. Our most अभी हम gracious प्रार्थना Heavenly करेंगे। Father, we thank you for this day. और प्रभु हम इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray that those who heard this voice and let them be understanding the true gospel. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, आप उन्हें इसे समझने का अनुग्रह दे। Help them to understand to all the messages the coming days. In Jesus' name we pray.
प्रभु आप अनुग्रह दे ताकि आने वाले दिनों में जितने भी संदेश वो सुनते हैं वो उन्हें समझ में आए। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमीन।